Hello students, today I will explain you fourth chapter of first book intermediate classes, 12th classes, changing profit sharing ratio. When a new partner comes into the partnership firm or a old partner take out from the firm or death of the partner, in all the cases first we calculate the profit sharing ratio. Profit sharing ratio means when a partner comes into partnership firm, then he brings his capital as well as his goodwill and also comes into the partnership firm with a particular profit sharing ratio. Today I will explain you what is the meaning of profit sharing ratio and how to calculate the profit sharing ratio. In this case, when a partner comes into partnership firm, we calculate profit sharing ratio according to the new partner ratio which bring into the partnership firm as a particular point. Suppose that a new partner comes to a partnership firm with a particular ratio, then we calculate new ratio, we calculate old ratio, we calculate sacrifice ratio and we calculate gaining ratio. Today we explain about the ratio. In the firm, there were two ratios, old ratio and new ratio. With the help of old ratio and new ratio, we calculate the 2 points. First, sacrifice ratio and second, gaining ratio. What I mean of sacrifice ratio, what is the meaning of gaining ratio? When a partner comes into a partnership firm, he brings his capital as well as his goodwill and take a particular percentage from the partnership firm as a partner in the profit sharing ratio. In this case, the old partner give the particular ratio to the new partner with his ratio. In this case, he sacrificed something to the new partner and this called is sacrificing ratio. So how to calculate the sacrificing ratio? Because we calculate sacrificing ratio in the admission of partnership firm, we calculate gaining ratio in the retirement and death of the partnership firm. तो आपका sacrifice ratio क्या होता है और न्यू रेशियो क्या होता है, आपका ओल्ड रेशियो क्या होता है, आपका गेनिंग रेशियो क्या होता है, इन सब पे आज मैं आपको समझाता हूँ कि ये रेशियोज़ क्या होते हैं. बहुत से स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कि सर रेशियो क्रिएट नहीं हो रहा, रेशियो समझ में नहीं आ रहा, कैसे करना है, इसको क्या करना है. तो मैं आपको बताता हूँ कि रेशियो को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस रेशियो को कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस कंडीशन से इस रेशियो को आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी लैंग्वेज रखी होती है जिसको अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करना होगा आपको, क्या रूल्स हैं, क्या कंडीशन है, कैसे फार्मूले को अप्लाई करेंगे. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको समझाता हूँ आज. कि पहले आपको बताता हूँ मैं आपका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो हमेशा वो रेशियो होता है जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा जो कि पार्टनर्स का है. सपोज दैट कि एक कंपनी में एक्स एंड वाई आर पार्टनर एंड देयर प्रॉफिट sharing ratio 2:1. So that is the old ratio of the particular partner. And Mr. X comes into the partnership firm with 1/5 ratio. That ratio is called old new partner ratio. And with the help of this ratio, we calculate the new ratio. So I tell you what is the meaning of new ratio. Okay. In the firm, A and B are partner. The ratio was 3:2 and Mr. Ram comes into the partnership firm with 1/5 ratio. And the question it is given, calculate new ratio of the firm. So with the help of new partner ratio, we calculate the new ratio of the firm. For this purpose, we apply a particular formula whenever nothing given about the new ratio. So
द फॉर्मूला इज न्यू रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड पार्टनर रेशियो। ओके, अब आप देखिए कि आपका न्यू रेशियो 3, ओल्ड रेशियो 3:2 है और न्यू रेशियो का 1/5 है। तो पहले कैसे इसको हम सिम्बलाइज करेंगे, 3:2 इज इक्वल टू 3/5, 3/5 and 2/5। Okay, now with the help of this formula we calculate the new ratio कि new ratio is equal to 1 minus न्यू पार्टनर रेशियो इंटू ओल्ड पार्टनर रेशियो। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे मिस्टर ए का, किसका, मिस्टर ए का, कि 1 में से आपने लेस किया 1/5 जो कि आपका राम का था, जो नया पार्टनर आपका आया था। तो कितना हो गया आपका 5 1 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5। ओके, इंटू ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो ए का कितना दे रखा है आपका 3/5, तो इंटू 2 3/5। इट्स क्लियर। तो 4 3 जा 12 और 5 5 जा 25। इज इट क्लियर। ये आपको आ गया ए का। अब ये आपको आते हैं बी का। तो 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 में से 1 गया तो 4/5 इंटू 2/5, क्योंकि अब बी का रेशियो कितना है 2/5। कितना हो गया आपका 8/25। ये क्लियर। मैं फिर क्लियर करता हूँ कि फर्स्ट देयर आर 2 पार्टनर इन द फर्म ए एंड बी विच रेशियो आर 3:2। तो 3:2 मीन्स 3:5, 3/5, 2/5, and Ram comes into partnership form with the 1/5 ratio। ओके, आपको कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। तो कैसे करेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट आप, कि फॉर्मूला हमारा है कि न्यू रेशियो इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो इंटू ओल्ड पार्टनर रेशियो। कि जो नया पार्टनर का रेशियो उसमें 1 में से लेस कर देंगे तो क्या बचता है आपका, उसमें आपको ओल्ड पार्टनर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ए का निकाला हमने, तो हमने 1 माइनस न्यू पार्टनर कितना आपका है राम 1/5 का। तो 1 माइनस 1/5, तो 5 1 जा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5 इंटू 3/5। तो 4 3 जा 12, 5 5 जा 25। फिर 1 माइनस 1/5, 4/5 इंटू 2/5, कितना हो गया 8/25। ये आपका आ गया ए का न्यू रेशियो 12/25, बी का आ गया 8/25। अब क्या ये रेशियो आपका सही है, इट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट। ओके, वेरिफिकेशन, जांच कर लीजिए कि आपका ये रेशियो सही है या आपका रेशियो ये गलत है। उसका कहते हैं वेरिफिकेशन। आपका है 12/25, 8/25, 1/5, क्योंकि आपका फिगर कितना था 1/5। एग्जाम दिया आपने 25। ओके, ये आपको हो गया 25 1 जा 25 और 1 12 जा 12, 25 1 जा 25, 1 8 जा 8 और 5 5 जा 25। क्लियर। तो 12 और 8 20 और 5 25/25, ये कितना हो गया आपका 1। अगर ये आपका 1 आ रहा है तभी आपका रेशियो सही है। अगर आपका 1.14 भी आपका आता है तो आपका रेशियो ये सही नहीं है। इज इट क्लियर। तो ये जांच है कि आपने जो क्वेश्चन करा वो सही है या आपका गलत है। हम कैसे न्यू रेशियो निकालेंगे, इस प्रोसेस से कि जो भी ओल्ड रेशियो दे रखा है उसको और जो न्यू रेशियो दे रखा है उसको आपने यहाँ लिखा। न्यू रेशियो लगाने का फॉर्मूला लगाया कि 1 माइनस न्यू पार्टनर रेशियो इंटू ओल्ड पार्टनर रेशियो। उसके बाद आपने करा ए का निकाला और बी का निकाला, आपका आया 12.25 और 8.25। ये सही है ये गलत है, इसकी आप जाँच कर लें। एग्जाम में क्वेश्चन में किताब बुक्स में कहीं पे ये नहीं कहा गया कि इसकी जांच कैसे करेंगे। तो फिर वेरिफिकेशन क्या करेंगे कि आपका ए कितना है 12/25, बी का कितना है 8/25 और सी का वही था आपका 1/5 यानी कि राम का 1/5। तो आपने इसको डिवाइड किया 25 25 1 जा 25, 1 12 जा 12, 25 1 जा 25, 1 8 जा 8, 5 5 जा 25। 12 + 8 20 = 5 यानी कि 25/25। इसका आंसर एक ही आना चाहिए। अगर 1.1 भी आ रहा है तो आपका रेशियो गलत है। इज इट क्लियर। रीड दिस एंड आस्क मी।